Welcome to the class 12th students. In the previous lecture, we discussed what is the rate change, and discuss the sum problem. In the chapter 6, we have only studied three topics: rate change, tangent normal, and maxima minima. Now, maxima minima is discussed in the first lecture. In second lecture, we discuss the rate change. Now we discuss the maxima minima. This is the important topic. One question 6 marks. Every year you get one question 6 marks. Now, what is the maxima? What is the minima? What is the local maxima? What is the local minima? We discuss these topics. Don't confuse the maxima, minima and local maxima and local minima. Now today we discuss the topic maxima, minima. Then suppose the curve y equal to x square, y equal to mod x, y equal to mod x plus 3, y equal to mod x minus 3, y equal to sin x plus 1, y equal to sin x minus 1. We discuss the some example. How can I understand what is the maxima, what is the minima, what is the maximum value, what is the minimum value, what is the local maxima, what is the local minimum. Now we discuss the what is the maxima and minima. Some simply example. Suppose any function fx. Suppose any function fx equal to x is where x belongs to the real number. Now you know that this is the parabola. In the class first year you had y equal to x square. This is the equation of the parabola. Now when you plot the graph, y equal to x square, fx means y equal to x square. When you plot the graph, this is this type of the graph. Now this is the x equal to 0, and this is the minimum. This is the minimum when you increase the value of the x. When you increase the value of x, the curve will go to the infinite. When you increase the value of the x, the curve will go to the infinite. Then you see here there is the no maxima. आप इस कर्व में देख सकते हो कि इसमें कोई भी मैक्सिमम पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये फंक्शन आप x की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे और ये कर्व ऐसे ऊपर की तरफ जो है शो करता जाएगा. नाउ बट x equal to 0, when x equal to 0, this is x equal to 0. When x equal to 0, the fx equal to 0. When x equal to 0, then function fx equal to 0. But when you increase the value of the x, the value of fx is the increase, then the function has the no maximum value and no maximum point. But at x equal to 0, the value of the fx is 0, then the function attains the minimum value at x equal to 0. Then x equal to 0 is the point of the minima, and fx equal to 0, this is the minimum value. Similarly, you know that the graph of the fx. Similarly, you know that the graph of fx equal to, suppose this is the mod x. You know that in the class first year, the graph of the mod x is like in the V shape. You know that the graph of the mod x is in the V shape. Then this graph is this type of the graph. This is the
this type of the graph. Now, when x equal to 0, when x equal to 0, the function is the 0. But you see here, there is the no limit of the maximum. आप x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, आप x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे और ये वैल्यू जो है f(x) की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी. When x is finite, this is the go to the infinite. Then there is the no maximum value. But at x equal to 0, the function f(x) is the 0. This means 0 is the point of the minima and f(x) is the minimum value. 0 is the minimum value, the point is 0 and minimum value is also a 0. Suppose, now discuss another example. Suppose f(x) equal to mod x. Suppose f(x) equal to mod x plus 3. In the class first year, you know that the graph of the mod x plus 3, this is the minus 1 x plus 3, so you compare the 0, then x equal to minus 3. This means this is the 0, this is the minus 1, this is the minus 2, and this is the minus 3. At minus 3, the graph of this is the graph of the mod x plus 3. This means at x equal to minus 3, the function attained the minimum value. But when you increase the value of the x, the v shape is the increase. When you increase the value, this graph is this type. When you take the minimum value and when you take the negative value, then this graph is increased this type. This means the function f(x) equal to mod x plus 3 attained the minimum value at x equal to minus 3. At x equal to minus 3, the f(x) is at x equal to minus 3, function attained the minimum value. The function attained minimum value f(x) equal to 0. Yani x equal to minus 3 is the point of the minimum. And what is the minimum value? The minimum value f(x) equal to 0. This is the minima, a local minima, and this is the local minimum value. Similarly, you give another example. Suppose f(x) equal to, suppose we give the another example. Suppose f(x) equal to mod में sin x plus 3. You know that the value of the sign between the minus 1 to 1. The maximum value of the sign is the 1 and minimum value of the sign is the minus 1. Then what is the minimum value? The minimum value is the minus 1 plus 3. साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 आपको पता है किस पॉइंट पे साइन -1 हो जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? दिस इज द -1 plus 3, then this is the 2. Now the maximum value of the sign is the 1. The sign is the 1, then f(x) is the
then fx is the 1 plus 3, then this is the 4. Then minimum value क्या आ जाएगी 2. What is the minimum value of this function? 2. What is the maximum value of this function? 4. अब पॉइंट आपको किस पॉइंट पे होगा? आपको पता है sin 90 पे 1 होता है, π/2 पे होता है, 3π/2 पे होता है, 5π, ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे. Understand? Now we discuss the derivative test. How can you find by the derivative test local maxima या maxima and minimum value of the function? और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए दो डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं. एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड इज द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. व्हेन सेकेंड डेरिवेटिव इज फेल, then we apply the first derivative test. What is the derivative test? How can you find the maxima and minima and maximum value या minimum value by the first derivative test? We give the one example and you see how can we find the local maxima minima या maxima minima by the first derivative test. We give the example 29. Example 29 हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करेंगे. हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. नाउ एग्जांपल 29. एग्जांपल 29. The fx is example 29. fx is the x cube. The fx is x cube minus 3x plus 3. By the find the all point of the local maxima and local minima of the function. आप इसको ध्यान से देखिए कैसे करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से. लेकिन एग्जाम में जनरली यू अप्लाई द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बट यू नो हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. सबसे पहले क्या करेंगे, नाम से ही पता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे. फंक्शन को डिफरेंशिएट किए. व्हेन यू डिफरेंशिएट f dash x, then f dash x is 3x square minus 3. 3x square minus 3. Now take the common. You take the common. This is the 3x square minus 1. 3x square minus 1. And this is 3. This is x minus 1, and this is the x plus 1. X minus 1 and x plus 1. This is the f dash x. This is the f dash x. Now you compare the f dash x is 0. F dash x when f dash x is 0. This means you get the value x equal to 1 and x equal to minus 1. Okay. When you compare the first derivative test, you find the two value of the x equal to 1 and x equal to minus 1. Now x equal to 1 and x equal to minus 1. Now suppose how can you so this is
du at x equal to the value of x, and f dash x equal to 3 x minus 1 x plus now at x equal to, you find the two value, x equal to 1 and x equal to माइनस। कैसे करेंगे देखो आप, सपोज दिस इज द 1, यू फाइंड द टू वैल्यू x equal to 1 and x equal to minus 1, then suppose this is the point x equal to 1 and this is the right side, right hand, and this is the left hand। अब 1 के आप राइट जाएंगे, 1 के राइट आप 1.1, 1.2, 1.3, you take any value now and put here, then 1 के राइट में गया, 1 के राइट, पॉइंट के राइट जो भी पॉइंट मिलेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को जीरो करने के बाद जो भी पॉइंट मिलेंगे उस पॉइंट के राइट जाएंगे और फिर उस पॉइंट के लेफ्ट जाएंगे और देखेंगे कि पॉइंट का बिहेवियर कैसा है। अब देखो पॉइंट के राइट गए तो 1.1, या f डैश x पॉइंट के राइट गए, राइट जाने पे तो ये क्या हो जाएगा 1.1, 3 is positive, 1.1 minus 1, यानी this is 0.1, first bracket is the positive and second bracket पॉइंट के लेफ्ट, 1 के लेफ्ट 0.9, 0.8 कुछ भी ले सकते हैं, तो 0.9 प्लस 1, 0.9 plus 1, 1.9, and this is the also positive। पॉजिटिव में पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब पॉइंट के लेफ्ट जाएंगे, पॉइंट के लेफ्ट गए तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट के लेफ्ट, पॉइंट 1 के लेफ्ट में आया, 1 के लेफ्ट 0.9, 1 के लेफ्ट आया 0.9, then 0.3 is the positive, 0.9 minus 1, this is the negative, then this is the negative, and 0.9 plus 1, this is the positive। अब मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो गया नेगेटिव, यानी ये इस पॉइंट के जब हम राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव और लेफ्ट जा रहे हैं तो नेगेटिव, मतलब राइट से लेफ्ट जाने पे पॉइंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। देन दिस इज द पॉइंट, वन इज द पॉइंट ऑफ द मिनिमा, वन इज द, यदि पॉइंट के राइट गए तो पॉजिटिव आ गया, पॉइंट के लेफ्ट गए तो नेगेटिव आ गया। दिस मीन्स वन इज द पॉइंट ऑफ द मिनिमा, वन इज द पॉइंट ऑफ, ये क्या है, दिस इज द मिनिमा, दिस इज द मिनिमा, दिस इज द मिनिमा या लोकल मिनिमा, दिस इज द मिनिमा, अंडरस्टैंड। अब सेकेंड पॉइंट हमको मिला है x इक्वल टू -1। अब ठीक यही प्रोसेस करेंगे, यदि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो ये भी मिनिमा होगा, लेकिन यदि ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो ये मैक्सिमा हो जाएगा। यदि ये नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमा हो जाएगा। नाउ वी चेक द अनदर पॉइंट। आपको 2 पॉइंट मिले थे, एक मिला x इक्वल टू 1, 3 पॉइंट मिलेगा तो 3 पॉइंट चेक करेंगे, 2 पॉइंट मिलेगा तो 2 पॉइंट चेक करेंगे। हमको एक पॉइंट x इक्वल टू 1 मिला तो पॉइंट के राइट जाने पे पहले राइट जाएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा,
फिर दूसरे पॉइंट में राइट से लेफ्ट जाएंगे, यदि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यदि वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। नाउ यदि पॉइंट का कोई बिहेवियर नहीं होगा, पॉजिटिव भी रहेगा, राइट जाने पर भी पॉजिटिव रहेगा, लेफ्ट जाने पर भी पॉजिटिव रहेगा, देयर इज नो चेंज, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। नाउ वी x इक्वल टू माइनस, अब दूसरे पॉइंट के हम राइट जाएंगे, और फिर इस पॉइंट के हम लेफ्ट जाएंगे और देखेंगे कि f डैश x का बिहेवियर क्या है। नाउ अब -1 के आप राइट जाइए, -1 के राइट में -0.9 हो जाए, -0.9। अब देखिए f डैश x क्या हो रहा है, f डैश x -0.9 एंड -1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फर्स्ट ब्रैकेट नेगेटिव हो गया और सेकेंड ब्रैकेट -0.9 +1 क्या है, पॉजिटिव। दिस इज द पॉजिटिव, और ओवरऑल क्या हो गया, दिस इज द नेगेटिव। अब इस पॉइंट का अब लेफ्ट आइए तो माइनस, लेफ्ट आएंगे तो -1.1, तो -1.1 -2.1, अब तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। फिर पॉइंट के मैं लेफ्ट आया तो -1 के लेफ्ट -1.1, अब इसमें रखेंगे -1.1 -1 नेगेटिव, या हो गया नेगेटिव। दिस इज द नेगेटिव -1.1 +1, दिस इज आल्सो नेगेटिव। नेगेटिव में नेगेटिव का मल्टीप्लाई हुआ, ये क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। नाउ तो ये क्या हो गया, बिहेवियर इसका क्या होगा। अब इस पॉइंट के हम राइट गए, और राइट से लेफ्ट आए तो क्या हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव। f डैश x क्या हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो वो जो पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, मिनिमा हो जाता है, मिनिमा। दिस इज द मैक्सिमा। ये पहला पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो मिनिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमा। दिस इज द मैक्सिमा। Now that you understand how can you by the first derivative test, how can you find the value local maxima and minima point। सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। आप एक बार फिर से सुन लीजिए कैसे करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ कैन यू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बाय द लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। फर्स्ट सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 से कंपेयर करेंगे। आप 0 से कंपेयर करेंगे तो 2 वैल्यू 3 वैल्यू जो भी आपको मिलेगा आप उसको यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर देना। सब यहाँ पे x = 1 and x = -1, you get the 2 value। now this is the x 1 पे चेक करेंगे और -1 पे। कैसे चेक करेंगे, जो भी पॉइंट होगा हम उस पॉइंट के राइट जाएंगे पहले और फिर लेफ्ट जाएंगे। राइट जाने पे पॉजिटिव और लेफ्ट जाने पे नेगेटिव आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमा। ध्यान से सुनिए, पॉइंट के राइट जाने पे, और कहाँ रखेंगे उसको, f डैश x में रखेंगे। पॉइंट के राइट जाएंगे तो पॉजिटिव, अब पॉइंट के लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमा। यदि पॉइंट के हम राइट गए तो नेगेटिव, अब पॉइंट के लेफ्ट गए तो पॉजिटिव, देन दिस इज द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमा। नेगेटिव से पॉजिटिव मैक्सिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव मिनिमा। दिस इज द पॉइंट। और वैल्यू कैसे पता करते हैं, हाउ कैन यू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। वैल्यू देखो कैसे फाइंड करते हैं,
आप इसमें रखना जो भी पॉइंट वन क्या है, वन इज द पॉइंट ऑफ द मिनिमा. Now you put in fx. Now you put in fx at x equal to 1. This is the 1 minus 3 plus 3. This is the 1. Then this is the value. 1 पे वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 आ रही है. और x इक्वल टू माइनस 1 रख के देखिए. एट यहाँ पे आप -1, you put the -1, then this is the -1 minus 3, this is the +3, and this is the +3, 6 and 5. This is the value, and this is the point. This is the point, and this is the minimum value, and this is the maximum value. Understand? Why the first derivative test? How can you find the maximum and minimum? लेकिन इसका हम अप्लाई सबसे अप्लाई करते हैं कौन सा, हम अप्लाई करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. लेकिन आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आना चाहिए. जनरली जितने भी क्वेश्चन हैं हम अप्लाई करेंगे कैसे, बाय द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. हम इंट्रोडक्शन अभी आपको कर देते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में कैसे करते हैं. नो ओके फ्रेंड्स, अब आप देखिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है. व्हाट इज द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में आप यहां तक करके लाएंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे. फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करने के बाद एफ डैश एक्स को 0 से कंपेयर करेंगे और हमको दो वैल्यू मिलेगा, एक एक्स इक्वल टू 1, एक एक्स इक्वल टू -1. सारे क्वेश्चन में यही प्रोसेस है. और फिर दोबारा उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे. सेकेंड टाइम हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से. जो भी क्वेश्चन करेंगे सेकेंड से करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ तक प्रोसेस वही करेंगे. जो गिवन फंक्शन है उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उसको 0 से कंपेयर करेंगे और x की जो वैल्यू है 2, 3 जो भी वैल्यू मिलेगा हम उसको फाइंड करेंगे. ये प्रोसेस. फिर उसके बाद हम फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं. ये जो एफ डैश एक्स है ना, ये एफ डैश एक्स को यू डिफरेंशिएट अगेन. अब देखो, अब आप इसको क्या करोगे, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे. एफ डैश एक्स क्या आया है, एफ डैश एक्स आया है 3x² -3. आप क्या करेंगे, फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे. एफ डबल डैश एक्स जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x. अंडरस्टैंड? नाउ अब क्या करेंगे, देखो सेकेंड बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आपको पॉइंट मिला है, कौन कौन से पॉइंट मिले हैं, एक x इक्वल टू 1 पॉइंट मिला है और एक x इक्वल टू -1 पॉइंट मिला है. अब इसको हम इसमें रखेंगे, इसमें f डैश x में, इसमें रखेंगे f डैश x में रखेंगे. तो क्या होगा, f डैश x में आप रखो इसको एट x इक्वल टू 1, f डबल डैश x क्या आ जाएगा, f डबल डैश x जो होगा या f ये आ जाएगा 6. दिस मीन दिस इज द पॉजिटिव. अब ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया. देखो जब पॉजिटिव आया तो अब जो भी वैल्यू x की जो वैल्यू उसको सेकेंड ऑर्डर में रखेंगे. यदि पॉजिटिव आया तो क्या हो जाएगा, वो मिनिमा हो जाएगा, वो मिनिमा. और जो नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा. पॉइंट कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, x की वैल्यू पता करेंगे, उसको सेकेंड ऑर्डर में रखेंगे. सेकेंड ऑर्डर में रखने के बाद यदि पॉजिटिव है तो क्या होगा, वो जो होगा वो मिनिमा होगा. यदि नेगेटिव है तो क्या होगा, मैक्सिमा. दिस इज द मैक्सिमा. तो x इक्वल टू 1 यू पुट इन f डबल डैश x तो पॉजिटिव. तो पॉजिटिव आने का मतलब मैक्सिमा नहीं, पॉजिटिव आने का मतलब हो गया x इक्वल टू 1. पॉजिटिव आने का मतलब मिनिमा.
पॉजिटिव आने का मतलब मिनिमा और नेगेटिव आने का मतलब मैक्सिमा। अब देखो एस, अब दूसरा पॉइंट हम किस में रखेंगे, एस डबल डैश एक्स में रखेंगे, एस डबल डैश -1, ये क्या आ गया -6। देखो ये सब आपको करने की कोई जरूरत नहीं है सेकेंड ऑर्डर में। सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद हम सेकेंड ऑर्डर में रखेंगे। सेकेंड ऑर्डर में जब आप रखेंगे तो यदि पॉजिटिव आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आने का मतलब मिनिमा और नेगेटिव आने का मतलब मैक्सिमम। जैसे x = 1, दिस इज द 6 पॉजिटिव, दिस इज द मिनिमा। x = -1 यदि आप सेकेंड ऑर्डर में रखें तो -6 नेगेटिव, नेगेटिव आने का मतलब मैक्सिमम, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा और पॉजिटिव आएगा मिनिमम। अंडरस्टैंड। हम डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चन बाय द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। Understand? The homework is you read the examples, you read the NCERT examples and R.D. Sharma exercise 16, exercise 18.1, exercise 18.1, and you read the NCERT example. Understand? Now discuss the next lecture how can you solve the question by the second derivative test.